Good morning, class 11 students. I hope everyone fine at home. Students, as a sequence of the chapter 13 of class 11th, dictionaries are just going on right now in the main topic. Students, one little information to all of you, those are just viewing this video. Actually, dictionary is a main data types of the Python. Dictionary is what? Dictionary is the main data types of the Python, and it is different. It is different from other data types. Like that, if we talk about that string, if we talk about number, if we talk about tuple, if we talk about other data types, so list, the dictionary is just different from there, because in the dictionaries the two things is there. First is the key and second is the value. First is the key and second is the value. But this type of data, there is no one created the previous data, main data type, core data type. Like that, number you have generally given the value, string you are also given generally the value. If we talk about that other data types like that, a list, in the list you are also given a same value only. So in the sequence of that, dictionaries is different. Dictionary is totally different from the others, because here the value is directly located to the value is directly get from by the key. Okay, like that, if we talk about that some value, so value is just directly dependent to the key. Okay, if you call the key, you will be got your value. Understand? Now, today's topic is that we have discussed assessing elements in of a dictionary. Assessing elements of dictionary. Assessing elements of a dictionary मतलब डिक्शनरी के किसी एलिमेंट को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे फैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो वाइल assessing element from a dictionary you need the key. देखो जो मैं बता रहा था ना, हमें क्या जरूरत चाहिए? की. अगर की हमारे पास होगी तो हम किसको फैक्ट कर लेंगे? वैल्यू. वैल्यू इट मीन्स एलिमेंट. हम एलिमेंट को क्या करेंगे? फैक्ट कर लेंगे. while a list the element are assessed. देखिए, while a list the element are assessed through their index. जैसा कि मैंने बताया आपको, स्ट्रिंग हुआ, टपल हुआ या लिस्ट हुआ, इसमें हम क्या करते थे? आई इंडेक्स का यूज करके तुरंत उसको एसेस कर सकते हैं. इन डिक्शनरीज द एलिमेंट आर एसेस्ड थ्रू द कीज. डिक्शनरी में क्या होता है? कीज के थ्रू क्या हो जाता है? वो उसकी वैल्यू, उसके एलिमेंट को एसेस कर दिया जाता है. defined in the key value pairs as per the syntax below. ठीक है. जनरली क्या है कि देखिए, डिक्शनरीज का जो है वो जो कीज का जो है कैसे पेयर होता है, जनरली आप देख सकते हैं ये सिंटेक्स है. डिक्शनरीज का नेम होना चाहिए और उसकी की होनी चाहिए. जब डिक्शनरी का नेम और की को फैक्ट के लिए लिखेंगे तो जनरली उसकी वैल्यू जो होगी, एलिमेंट जो होगा, वो ऑटोमेटिकली फैक्ट हो जाएगा. जैसा कि हम पीछे करते थे, जैसे हम जनरली क्या करते थे? एक लिस्ट बना लिए तो लिस्ट के साथ इंडेक्स जोड़ते थे, ठीक है. ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्शनरी का नाम देना पड़ेगा और उसके साथ उसकी की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है. नाउ thus to assess values for key defined current. जैसे मान लिया करंट की हमें की डिफाइंड करनी है, ठीक है. द डिक्लेयर्ड टीचर्स डिक्शनरी, ऊपर एक टीचर्स डिक्शनरी की गई थी. चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ. जैसे मान लीजिए कि ये एक टीचर्स की डिक्शनरी कहाँ गई, ये रहा, ठीक है. देखिए, ये एक टीचर्स की डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी का नाम है, ये की है, ये वैल्यू है. तो ये करंट की के बात हो रही है, जिसका एलिमेंट क्या है? सोशियोलॉजी. अब देखिए कैसे फैक्ट करेंगे जनरली. तो हमें करना क्या है? वी हैव टू इन फ्रंट ऑफ प्रॉम्प्ट वी राइट द नेम ऑफ द what? Dictionary, and then in the square bracket we given the key name. When we giving the key name in front of the what? This is, what is this? Tell me. Dictionary.
So we fetch the element of the current is sociology. Okay. So if you want to just print it that in just name of them, so write print current teachers, give the name of this dictionary. Keys, automatically the value is just fetched. Okay, one more mistake I think over there, you just listen there. Do not put the this one by mistake. The programmer just given the colon, string, but you don't write. No, no, this is yes, yeah, yes, you write the string. Sorry, you write the string because key is the key is in a form of the string. You just write it. Okay, sorry for that. Now, next topic is that while giving key inside a square bracket gives you access only the values corresponding the mentioned key. Okay, mentioning the dictionary name without the square bracket print display the entire content of the dictionary. Consider the following example. जैसे मान लीजिए कि डी क्या है, ये है एक डिक्शनरी, ठीक है, और जिसमें क्या है वोवेल्स वैल्यू ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, वोवेल 1 से 5 तक है और उनकी वैल्यू लिखी गई है। अब जनरली क्या है, डी को अगर आप प्रिंट कराएंगे तो पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जा रही है, पूरी पूरी डिक्शनरी क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। तो डी को लिखकर भी प्रिंट करा सकते हैं, और नहीं तो आपने अगर लिखना है केवल प्रिंट डी तो प्रिंट डी को भी लिख करके उसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। अब यहाँ आता है कि अगर एक की वैल्यू देखनी है कि वोवेल्स को 1 कौन है, ठीक है, तो ये 1 हो गया, वोवेल्स 4 कौन है तो वोवेल ओ है। इस तरह से भी आप एसेस कर सकते हैं, ठीक है। एज पर योर बेस्ट ऑफ नॉलेज you have select any one method to just assess your element from dictionaries. Now next is that as per the above example we can say that key order is not guaranteed in Python. Key ordered is not guaranteed in Python. This is because in the Python dictionaries the elements key value pair are unordered or cannot access element and as per a specific order. The only way to access a value is through key. Thus we can say that key act like indexes access values of a dictionary. मतलब हम कह सकते हैं कि जो की है, की इज जस्ट लाइक टू जस्ट व्हाट, की इज जस्ट लाइक टू दैट इंडेक्स। इंडेक्स की को हम क्या कह सकते हैं, इंडेक्स कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी है क्या, जनरली देख लेते हैं और एग्जांपल क्या कह रहा है ये बुक पढ़नी चाहिए, इससे इंफॉर्मेशन होती है। आल्सो अटेम्प्टिंग द एसेस ए की दैट डज नॉट एग्जिस्ट। मान लीजिए कि एक की प्रयोग की जा रही है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक एरर आएगा। जनरली क्या है कि अगर मान लीजिए डी में 13 कोई इंडेक्स है ही नहीं है ना, 13 कोई की है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है। नाउ हियर इज वन एग्जांपल, वन व्हाट यू कैन से दैट वन क्वेश्चन. See there. Consider the dictionary created in the previous program 13.1. Modify the previous program to check the roll number 2 has scored more than 75 marks. तो देखिए यहाँ जनरली क्या हो गया, आपको बताना है कि जो 2 है वो चेक करना है कि उसकी वैल्यू मोर देन 75 है कि नहीं है। तो जनरली आप स्कॉलर हाई हैं, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, इफ से इसका जो है कि कंडीशनल स्टेटमेंट देख लीजिए क्या कह रहा है। कंडीशनल स्टेटमेंट कह रहा है कि D2 मतलब जो 2 जो की है अगर उसकी वैल्यू 75 से एबव है तब तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, और अगर नहीं होगी तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जनरली इसमें दिया क्या है, एक स्ट्रिंग एग्जीक्यूट किया गया है और फिर उसकी वैल्यू दी गई है और बताया गया कि ये 75 से बड़ी है या ये 75 से छोटी है। जनरली मान लीजिए ये है 2 की वैल्यू क्या है 45 है, तो जनरली ये 45 उससे बड़ा तो है नहीं, तो 10 रोल नंबर 2 इज कोड इज मान लीजिए 45 जो कि क्या है लेस देन 75, ठीक है। अब जे ट्रैवर्सिंग,
इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। ट्रावर्सिंग ए डिक्शनरी, कैसे ट्रावर्स कराया जाएगा, मतलब सीक्वेंस में कैसे कर दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 के। देखिए जनरली ट्रावर्सल ऑफ ए कलेक्शन मीन्स assessing and processing each element of it. Thus traversing a dictionary also means the same of the tools for it, that is Python loops। ठीक है, there is the for loop and traverse for the for loop over। ठीक है, it is easy to traverse or loop over द आइटम्स इन डिक्शनरी एज पर द फॉलोइंग सिंटेक्स। क्या होना चाहिए, फोर होना चाहिए, एक आइटम ले लीजिए और उसको डिक्शनरी में चेक कराइए, फिर प्रोसेस फॉर ईच आइटम, जो आपके स्टेटमेंट होंगे वो लिख लेंगे। ठीक है, आइए कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, जनरली से कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल विल इलस्ट्रेट द प्रोसेसर। डिक्शनरी नेम D1। ठीक है, डिक्शनरी नेम D1 इज डिफाइंड, ये डिफाइंड हो चुकी है डिक्शनरी नेम D1। ठीक है, विद द 3 कीज, जिसमें क्या है 3 कीज हैं, ए नंबर, स्ट्रिंग, टपल ऑफ इंटीजर। ठीक है, देखिए एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है और एक टपल है। ठीक है, तो ये की हो गई, इधर वाली सब की हो गई, इधर वाली सब वैल्यूज हो गई। स्लैश करके लाइन को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, यू कैन यूज द स्लैश टू एंड ऑफ द फिजिकल लाइन। ठीक है, मल्टीपल लाइन लिखने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं, फॉर द ट्रावर्स टू द ट्रावर्स द एबव डिक्शनरी यू कैन यूज द फॉर लूप। फॉर लूप का आप यूज कर लीजिए। जैसे लिखिए फॉर की ले लीजिए, इन D1 में रन करा दीजिए, अब प्रिंट कर दीजिए की। ठीक है, कॉलन के साथ और D1 की को कॉल कर दीजिए। जानते हैं की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट होती है ना, इंडेक्स करके। तो जब से सबसे पहले अगर मान लीजिए कि यहाँ 0 इंडेक्स आएगा, ठीक है, मान लीजिए 0 की आएगी, की वैल्यू जो पहली होगी वो आ जाएगी यहाँ की मान लीजिए A हो गई, तो A की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अगर ए के इसकी की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी, 3 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। जनरली एक तरह से कहा जाए कि ये जो की है, कभी भी की डिक्शनरी में 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 इंडेक्स पे ये पूरा वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे ये पूरी वैल्यू है, और 3rd इंडेक्स पे और 2nd इंडेक्स पे ये पूरी वैल्यू है। तो एक तरीके से देखा जाए, जब इस लूप को आप चलाइएगा तो ये आपको ये डेटा इस तरह से दिखेगा। फिर जनरली आपका एक और प्रोग्राम है, इसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, और इसको पायरॉट पे चेक कर लेंगे, बिल्कुल चेक कर लेंगे। टिल देन बाय बाय।